Welcome to the class 6th. I am Richa Mishra, your English teacher, and today we are going to start with the new chapter from a stem to a stylus. Can anyone tell me what the stylus is? Stem, you all know what the stem is. Okay, let us begin from the beginning. What is stem? What is stem? Morning, ma'am. Good morning, beta. What's your name? And stylus is a pen-like thing used for digital tablets and mobiles. For what purpose? Ma'am, for touch screen. For writing purpose. Okay. Thank you Yes, for your ma'am. response. Thank you for your response. Okay. So now stem, you all know what the stem is. Stem क्या होता है? Can anyone tell me? Raise your hand if you know what the stem is. Anyone? Stem? Yes, Kapil? प्लांट का पार्ट होता है. प्लांट का पार्ट होता है. कौन सा पार्ट होता है बेटा? मैम प्लांट का मेन पार्ट. मेन पार्ट होता है जिसमें पत्तियां वगैरह लगती हैं. दैट पार्ट इज नोन एज स्टेम. To a stylus. So first when we started writing, okay, so when we started writing by the stem of a plant, and now we write with the help of a stylus because everything is digital. So we need to write, and if we need to write, then there are stylus available. As one of the students clearly mentioned, that stylus is a pen-like thing which is used to write on tablets or screen basically. So that kind of apparatus, that kind of appliance is known as stylus. Fine. So let us begin with the chapter now. Beginning with the painting on the walls of caves, humans have recorded their experiences in many different ways. Read this short essay to find out how writing evolved from clay tablets to modern electronic gadgets. So now this chapter is basically an essay which says that human beings started writing or painting on the walls of the caves. That is where the human early used to live. At the earlier days, you have studied about the early human beings, which is known as Adi Manav. Adi Manav कहाँ रहते थे? Walls, caves में रहते थे. तो caves के walls पे वो लोग painting करते थे. तो उस टाइम से लेके आज तक के टाइम पे लिखने की जो टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं. रिकॉर्डिंग, ह्यूमन हैव रिकॉर्डेड देयर एक्सपीरियंसेस. आप क्या लिखेंगे? जो आप एक्सपीरियंस करेंगे वही लिखेंगे ना. तो अगर मैं अभी आपको बोलूं कि एक पेंटिंग बनानी है, तो इफ यू आर हैप्पी यू आर गोइंग टू मेक अ हैप्पी पेंटिंग. इफ यू आर सैड यू आर गोइंग टू मेक अ वेरी सैड पेंटिंग. इफ यू आर वेरी एंग्री देन यू आर गोइंग टू मेक अ वेरी एंग्री पेंटिंग. So the way you experience, with the way your emotions are, that is you record them on the paper, right? So this is a short essay which tells you how we have evolved from clay tablets, which is मिट्टी के टैबलेट से हम मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स तक लिखने की जो कला थी, लिखने की जो टेक्नोलॉजी है, उसको हमने कैसे इवॉल्व किया है. One morning, a government accountant was hard at work. A farmer had to be paid. The accountant took up his curved reed stem and made a wedge-shaped mark on a 9 centimeter piece of moist clay. Now, moist clay यानी गीली मिट्टी. तो एक मॉर्निंग का टाइम है, ये बहुत पुरानी बात है, बहुत ही पुरानी बात है, which says कि wait for a minute, just wait for a minute.
सेशन। सो वन मॉर्निंग गवर्नमेंट अकाउंटेंट जो था, एक बहुत पुरानी बात बताई जा रही है आप लोगों को कि गवर्नमेंट अकाउंटेंट था, वो बहुत मेहनत से काम करने में लगा हुआ था। एक फार्मर को उसको पे करना था, तो उसने पे करने के लिए रिकॉर्डिंग करनी। अब आप कुछ भी करोगे गवर्नमेंट ऑफिस में, कुछ भी आप लेन देन करोगे पैसे का, सो यू नो दैट उसको रिकॉर्ड करके रखना पड़ता है। बिकॉज आज आप इस सीट पे हो, क्या पता कल आप इस सीट पे नहीं हो, आपको दूसरा काम दे दिया जाए, तो वहां पर जो कोई भी व्यक्ति आके बैठेगा, इंडिविजुअल आके बैठेगा, उसको वहां की रिकॉर्डिंग के बारे में, रिकॉर्ड कैसे रखा आपने उसके बारे में तो नॉलेज होनी चाहिए। सो जो ये अकाउंटेंट था वो काम कर रहा था, और वो रिकॉर्डिंग का भी काम कर रहा था। रिकॉर्डिंग मीन्स टू रिकॉर्ड एनीथिंग। सो ही वाज रिकॉर्डिंग कि एक फार्मर को पेमेंट करना है, तो उसने क्या किया, गीली मिट्टी का एक टैबलेट निकाला, यानी एक रेक्टेंगुलर पीस लिया, और उस पे उसने एक स्टेम से वेज मार्क्स बनाए, यानी कुछ आप अगर देखो तो वेज मार्क इज समथिंग लाइक वी। ओके, सो वी टाइप के मार्क्स बनाए, एंड 9 सेंटीमीटर के इस मॉइस्ट क्ले पे, ठीक है। ही मेड अ स्टिक फिगर विद अ राशन बाउल फॉर द मैन। सो राशन का बोल बनाया, यानी एक बोल बनाया, एक बहुत बड़ा सा कटोरा बनाया, ठीक है, अपनी फिगर से, जो स्टिक उसके पास थी, और उससे उसने राशन का बोल बनाया। राशन का बोल का मतलब हुआ कि किसान को पेमेंट किया है। राशन कहाँ से आता है, हमारे लिए कौन उगाता है राशन, फार्मर उगाता है। सो फार्मर के लिए उसने राशन बोल बनाया। Then he made a crescent for day and a rising sun between the hills to record the time of the day. उसके बाद उसने टाइम नोट करने के लिए जो सूरज की एग्जैक्ट पोजीशन थी, वो ही पोजीशन उसने ड्रॉ करी, ठीक है। उसने पहले पहाड़ बनाया, पहाड़ के बाद उसने सन की पोजीशन बनाई, जहां पर उस समय, जिस समय वो ड्राइंग कर रहा था, उस समय जहां पर सन की जो पोजीशन थी, एग्जैक्टली उसी समय उसने क्या कहते हैं, ड्राइंग बना की और सन की पोजीशन लिखी। फाइनली एज द मैन वर पेड इन बार्ली, ही मेड अपराइट jars for the payment. Now you know earlier we used to follow the barter system. What was the barter system? Can anyone tell me? What was the barter system? You have studied it in the SST class. What is the barter system? Yes, Dhananjay. When humans were not that advanced, paper money was not invented. Very They good. just traded in a different thing to a different thing. Like Yes, yes, go on. he will give a tool or oars or a animal or Very good, for an Dhananjay. animal. Very good, Dhananjay. Thank you. So Dhananjay is absolutely right that when the writing technology was not so evolved, so people used to exchange the things. So in place of something, for example, in place of wheat, farmer can be paid in barley. Same way which is given in your book. Finally, as the men were paid in barley. Barley क्या है? It is a type of अनाज. It is a type of a grain. Okay, so barley के फॉर्म में किसान को पेमेंट करना था। तो उस आदमी ने ये रिकॉर्ड किया कि बार्ली की बाली बनाई, जैसे बार्ली उगाया जाता वैसे एक ड्राइंग बनाई। He made upright jars for the payment. और उसने एक खड़ा हुआ जार बनाया, आप इस पिक्चर में देख सकते हो, खड़ा हुआ जार बनाया, which denotes कि उसको पेमेंट दिया जा रहा है। He then baked the piece in a kiln to save it as the office memo. उसके बाद उसने उसको किन में डाला। किन क्या होती है, हिंदी में किन को हम भट्टी कहते हैं। आपको मालूम है भट्टी में बहुत सारी चीजें पकाई जाती हैं, जो चीजें भट्टी में पकाई जाती हैं तो वो पक्की हो जाती है। तो उसने उस रेक्टेंगुलर मॉइस्ट क्ले को किन में डाल दिया, भट्टी में डाल दिया, टू सेव इट एज एन ऑफिस मेमो।
उसको क्यों डाल दिया? जिससे कि वो सेव किया जा सके एज एन ऑफिशियल रिकॉर्ड. ऑफिस मेमो इज ऑफिशियल रिकॉर्ड. 6,000 years later, his handiwork was found at an excavation in a site in Iraq. 6,000 years के बाद वही टैबलेट जो उस आदमी ने उस वक्त पेमेंट के लिए बनाया था वो हमें मिला. कहां पर? इराक में, जब कुछ मजदूर खुदाई कर रहे थे. This fragment, the clay tablet, is one of the oldest means of written communication in the world. ये जो फ्रेगमेंट मिला, ये जो हमें टैबलेट मिला, ये one of the oldest रिकॉर्डिंग मेमो था, रिकॉर्डिंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था, रिकॉर्डिंग रिटन कम्युनिकेशन था वर्ल्ड से उस टाइम की टेक्नोलॉजी के आधार पर. ठीक है. The little clay tablet was as necessary then as a tablet, computer or laptop is now. That little clay tablet, जो उसका मिट्टी का टुकड़ा था, छोटा सा रेक्टेंगुलर मिट्टी का टुकड़ा था, वो उतना ही इम्पोर्टेंट था उस टाइम पर जितना कि आज एक कंप्यूटर, टैबलेट या लैपटॉप होता है. Writing has come full circle from tablet to tablet. Now see, today the tablets are rectangular, somewhat rectangular. And the tablet which we had, which we were using 6,000 years ago, is again a rectangle tablet. Okay, so writing जो है वो आके फिर से एक टैबलेट पे रुक गई है. Now we have databases in the computers and application that organize and record data. So अब हमारे पास डेटाबेसेस होते हैं. Now what is this databases? Databases का मतलब है कि टैबुलर फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में डेटा को रखना. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कौन से क्लास की क्लास टीचर हूँ? फॉर एग्जाम्पल मैं 6th B की क्लास टीचर हूँ. तो मैं अपने डेटा को, आपने सभी टीचर्स के पास रजिस्टर्स देखे हैं जिसमें वो आपकी अटेंडेंस लेते हैं ना, तो वो उसी तरीके के रजिस्टर्स को मेंटेन किया जाता है, उसी तरीके के डेटाबेस को मेंटेन किया जाता है कंप्यूटर में. उसको हम डेटाबेस कहते हैं. उसी तरीके के टैबुलर फॉर्म में यानी टेबल के फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाए. जैसे मैं आपका हर रोज की अटेंडेंस लेती हूँ तो मुझे पता होता है कि भाई ओके 1st of September को ये बच्चा आया एंड 5th of September को ये बच्चा नहीं आया था. तो मैं कैसे देखती हूँ? मैं उस टेबल में ही तो जाके चेक करती हूँ जो हमारी अटेंडेंस रजिस्टर में होता है. ठीक है. अभी आगे अगर some students say that I was not present on that particular day and that is why I have not done this work, so I have to check in the attendance register and then I will come to know whether the student is speaking truth or not. Right? In the same way, आजकल जब हम टेबल्स पे रिकॉर्डिंग करते हैं या टेबल्स पे डेटा को रखते हैं या आपकी इंफॉर्मेशन को सिक्योर करके रखते हैं कंप्यूटर में, तो उसे हम डेटाबेस का नाम देते हैं. Right? They have replaced the ancient accounting system. It has been an exciting journey of human inquiry and invention. और इस तरीके से इंफॉर्मेशन को सिक्योर करके रखने की एक बहुत ही यूनिक जर्नी ह्यूमन बीइंग्स ने ली है. ठीक है. Without written communication, the human world could not have existed. बिना written communication के, बिना लिखे हुए documentation के, बिना लिखे हुए documents के हमारा जो communication है वो proper नहीं हो सकता. Actually, the word tablet comes from the ancient Hebrew word tebel or the word. Linguistics also think it came from the Latin tabula meaning board or a flat table. Now ये टैबलेट वर्ड आया कहाँ से? हम लोग बहुत यूज करते हैं टैबलेट वर्ड को. तो ऐसा माना जाता है कि रिटन कम्युनिकेशन के लिए ह्यूमन ने जो रेक्टेंगुलर पीस को यूज किया, जैसे मैं भी अभी आपके सामने कह रही हूँ कि वो मॉइस्ट क्ले का टैबलेट था. मॉइस्ट क्ले, मॉइस्ट यानी गीली, क्ले यानी मिट्टी, गीली मिट्टी का एक टैबलेट था रेक्टेंगुलर फॉर्म का, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आजकल की इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं. तो जो ये टैबलेट था, ये टैबलेट वर्ड आया कहाँ से?
टैबलेट तो खाने वाली टैबलेट भी होती है, तो फिर हम इसको टैबलेट क्यों बोलते हैं इस रेक्टेंगुलर पीस को? तो जो लिंग्विस्टिक्स हैं, जो लैंग्वेज जानने वाले हैं, लिंग्विस्टिक्स इज लैंग्वेज जानने वाले, तो जो लैंग्वेज जानने वाले लोग हैं वो लोग कहते हैं कि टैबलेट वर्ड जो है वो हिब्रू के वर्ड टेबल से आया, जिसका मतलब है द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया। और कुछ लोग कहते हैं कि ये लैटिन वर्ड जो है टेबुला वहां से आया, जिसका मतलब होता है बोर्ड, ठीक है, और बोर्ड और फ्लैट टेबल। तन्मय, अगेन यू हैव स्टार्टेड sending emojis. Do not do so. You are disturbing the class. Okay, so I hope this is clear कि tablet word कहाँ से आया. It was in 1984 that we got the term tablet computer for the exciting new tool of human communication. हमें 1984 में वर्ड टैबलेट को इवॉल्व किया, वर्ड टैबलेट को यूज करना स्टार्ट किया कि एक छोटा सा कंप्यूटर है जो आपके हाथ में आ जाता है और बहुत ही एक्साइटिंग टूल है, एक बहुत ही एक्साइटिंग चीज है ह्यूमन कम्युनिकेशन के लिए, हम लोगों के कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। सिंस देन टैबलेट्स हैव बिकम आवर डिजिटल बेस्ट डिजिटल फ्रेंड, और तभी से टैबलेट्स जो है वो हमारे बेस्ट डिजिटल फ्रेंड बन गए हैं। टेक्नोलॉजी कंटिन्यूज to evolve and change at unimaginable speed. टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत तेजी से चेंज हो रही है, बहुत स्पीड से चेंज हो रही है। टच स्क्रीन हैव ट्रांसफॉर्म्ड द वे वी पुट आवर थॉट्स डाउन ऑन डिवाइसेस। टच स्क्रीन फोन्स होते हैं, आपको पता है कि टच स्क्रीन का क्या फंक्शन है, यानी आप स्क्रीन को टच करके लिख सकते हैं या कुछ भी काम कर सकते हैं। जो टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी है वो आपको बहुत तेज स्पीड प्रोवाइड करवाती है आपके डिवाइस पे, जिस पर आप अपने थॉट्स को लिख सकते हैं। Children born a few years ago probably have never seen a mobile with a keypad. आपको याद है, आप अपने पेरेंट्स से पूछना तो वो आपको बताएंगे जब शुरू शुरू में मोबाइल आए थे ना, तो उनके साथ भी जैसे कंप्यूटर पे कीपैड होता है ना, वैसा कीपैड था। तो पर अब आप लोगों ने उन फोन्स को देखा तक नहीं है, ठीक है। सो टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग इटसेल्फ, टेक्नोलॉजी अपने आप को बहुत तेजी से बदल रही है। We now take it for granted that gadgets will become smaller and more powerful and screens will become lighter, thinner and even flexible. हम ये मान के चलते हैं कि गैजेट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा छोटे हो जाएंगे, पावरफुल हो जाएंगे, उनकी स्क्रीन बहुत लाइट हो जाएगी, पतली हो जाएगी और फ्लेक्सिबल हो जाएगी। ये तो आप लोग भी देख रहे हैं, पहले के जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती थी वो कितनी मोटी मोटी होती थी, और अब एलईडी जो स्क्रीन्स हैं वो तो बहुत पतली होती है। पहले के आपने टीवी देखे हैं, आज इंटरनेट पे जाके अर्लियर टीवी लिखना तो आपको देखने को मिलेगा कि कितना मोटा सा टीवी होता था, लेकिन अब देखो आपकी जो एलईडी स्क्रीन्स हैं कितनी स्लिम है, कितनी पतली है, ठीक है। इमेजिन अ स्क्रीन द साइज ऑफ अ न्यूज़पेपर एंड दैट यू unroll and read and as it constantly gets updated with the latest news. एक ऐसी स्क्रीन का इमेजिनेशन करो जो न्यूज़पेपर की तरह काम करता है, जिसको आप स्क्रॉल करोगे तो वो कॉन्स्टेंटली न्यूज को अपडेट करता जाता है, ठीक है। Most of the communication gadgets we know are usually carried just as we carry books. जो भी गैजेट्स हैं, अब आपके हाथ में जैसे फॉर एग्जांपल टैबलेट है, ठीक है, तो आप उस टैबलेट को कैसे कैरी कर सकते हो? सिंपल, जैसे आप बुक्स को हाथ में पकड़ते हो वैसे के वैसे, ठीक है। सो आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को भी वैसे ही हैंडल करते हो जैसे कि आप अपने नॉर्मल बुक्स को करते हो, है ना। अगर आपको टैबलेट स्कूल लेके आना पड़ेगा तो आप इसको कैसे लेके आओगे? वैसे ही जैसे बैग में रख के बुक्स को लाते हो या फिर हाथ में पकड़ के लेके आओगे, है ना। पर ध्यान से पकड़ के लेके आना पड़ेगा, कहीं गिरा दिया तो ये बात
ध्यान में रखने की है। हाउ एक्साइटिंग इट विल बी टू वेयर देम, और कितना मजा आए कि अगर हम जो अपने गैजेट्स हैं उनको वेयर कर सके, उनको पहन सके। आपको पता है ऑलरेडी स्मार्ट वॉचेस हैं मार्केट में, है ना। तो स्मार्ट वॉचेस क्या करती हैं, आपके कई सारे फोन के फीचर्स को आपके कलाई पे लेके आ जाती है, रिस्ट पे लेके आ जाती है। यू कैन चेक योर व्हाट्सएप फ्रॉम देयर, यू कैन चेक द मैसेजेस, यू कैन चेक द ईमेल्स, यू कैन चेक योर various other activities, you can check your steps which you have to count otherwise. Now you can that wristwatch, that smartwatch is counting your steps. Okay, so there are so many things which these smart watches are doing for you. So just think, there is a smart glasses in which you can just see and read. ओके आपने न्यूज रीडर्स को देखा होगा, देखा है कभी, ऑब्जर्व किया है उनको, जब वो न्यूज बोलते हैं तो वो लोग नीचे देख के नहीं बोलते, सामने देख के बोलते हैं, कैमरे को देख के बोलते हैं ना। एंड दैट शोज देयर कॉन्फिडेंस एज वेल, दे स्पीक सो वेल, नो डाउट अबाउट इट, एंड दे जस्ट सी टू द कैमरा ऑन द इन द आई ऑफ द कैमरा एंड दे स्पीक वॉट एवर द न्यूज दे हैव टू स्पीक, राइट। सो वो कैसे करते हैं, क्योंकि सामने एक स्क्रीन लगी हुई होती है और उस स्क्रीन पे न्यूज चल रही होती है, तो दे जस्ट सी दैट स्क्रीन विच इज adjacent to the camera and then they start speaking the what you call it, the news, है ना। So in the same way, think that if you are going to have some kind of a glasses, कुछ इस तरीके के चश्मे आ जाए जिससे आपको सामने देख के आपको पूरी पढ़ाई करने को मिल जाए, या स्मार्ट जैकेट्स आ जाए। Imagine reading and writing an email while looking straight ahead and talking to your glasses. अब आपने स्पेक्स लगाए हुए हैं, आपने ग्लासेस लगाए हुए हैं और आप बोल रहे हो और ईमेल जो है अपने आप टाइप हो रही है। क्या पता फ्यूचर में ऐसे कोई गैजेट्स आ जाए। Now scientists are busy exploring deep inside the brain. Through brain scans, they have already identified different patterns associated with different activities, emotions and objects. साइंटिस्ट आजकल बहुत ज्यादा बिजी हैं ब्रेन की स्टडी करने में, बहुत ज्यादा डीप स्टडी कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं ब्रेन को। ब्रेन के स्कैन से वो लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ब्रेन के जो स्कैन्स आते हैं उससे वो ये पता लगा सकते हैं कि आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो उसमें आपको कैसा फील हो रहा है, आपके क्या एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, या आपके इमोशंस क्या हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को लेकर। So maybe not too long into the future we will be able to communicate just by reading minds. तो ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि हम फ्यूचर में एक दूसरे का दिमाग पढ़ सके। खतरनाक बात हो जाएगी। जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन कि आप मेरे बारे में सोच रहे हो कि ये मैडम कब जाएंगे क्लास में से और मैं वो पढ़ पाऊं कि ओके सो एंड सो इज थिंकिंग कि मैडम कब जाएंगी क्लास में से, तो हो जाएगी ना खतरनाक चीज। तो अगर ये बात नहीं हो तो ही अच्छी है, कम से कम टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए, तो नहीं तो सब पता लग जाएगा कि ये बच्चा सोच के आया है कि आज तो मैं चीटिंग करूंगा पेपर में, या आज तो मैं, मेरा जो नेबर है, मेरा जो मेरे साथ जो बैठ रहा है, मेरा क्लासमेट जो है वही मेरा पेपर कराएगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगा अपने हाथ से। तो फिर अगर मुझे सब कुछ पता लग जाएगा तो मैं तो आपकी सीट ही चेंज कर दूंगी, मैं तो वैसे भी कर देती हूँ, फिर तो मैं तो वैसे भी चेंज कर देती हूँ, तो मैं तो और भी जल्दी चेंज कर दूंगी। सो दिस इज गोइंग टू बी अ रियली very good invention for the human beings. Okay, so coming back to the chapter that you never know कि हमारे पास ऐसे गैजेट्स आ जाएं जो हम दूसरों का दिमाग पढ़ सकें। Does that sound a bit too far-fetched like sci-fi fantasies? ये कुछ तुमको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि हम ख्याली पुलाव पका रहे हैं या कोई साइंस फिक्शन की मूवी की बात कर रहे हैं? बट अ लॉट ऑफ इट इज ऑलरेडी हियर। पर इसमें से काफी सारी चीजें ऑलरेडी हैं। फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स आर ऑलरेडी अवेलेबल। कई सारे गैजेट्स जिनकी अभी हमने बात की है हमारे पास अवेलेबल हैं। Google glasses, for instance, allow you to send messages by speaking and they
there are handheld devices that can translate up to 40 languages. So Google Glasses जो हैं वो मैसेज सेंड करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। और ऐसे कुछ गैजेट्स हैं हमारे पास, हैंडहेल्ड डिवाइसेस हैं जो हमें ये फैसिलिटी देते हैं कि हम किसी भी सेंटेंस को 40 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर पाए। सो वो 40 लैंग्वेजेस ऑल ओवर द वर्ल्ड हो सकते हैं, राइट। सो इस काइंड के डिवाइसेस ऑलरेडी हमारे पास है। सो वी नेवर नो व्हाट द फ्यूचर विल ब्रिंग, तो हमें बिल्कुल नहीं पता कि फ्यूचर में हमारे पास किस तरीके के गैजेट्स हमें मिलने वाले हैं, राइट। So this was the essay from STEM to stylus. तो जैसे कि आपको इसका टाइटल बता रहा है कि हमने लिखना कैसे स्टार्ट किया था, स्टेम से लिखना स्टार्ट किया था, एक पेड़ के तने से लिखना स्टार्ट किया था। स्टेम इज अ पार्ट ऑफ अ ट्री। सो हमने स्टेम से लिखना स्टार्ट किया था और हम कहाँ तक आ चुके हैं, हम स्टाइलस तक आ चुके हैं। स्टाइलस, as one of the students spoke about it, that it is a pen-like device which is used to write on tablets or on a screen, basically. Okay, so this was your chapter. Now I am going to take your